morning, my dear students. Our today's topic is polynomial. So, I just want to ask, what is a polynomial? This is the topic which we are discussing since our junior classes. So, what is a polynomial? Let me just define any expression or any algebraic expression that contains constants, variables, and mathematical operator. What are the mathematical operators? We have four mathematical operators: plus, minus, multiply, and divide. Any expression which contains all these constants, variables, and mathematical operators is known as algebraic expression. Any expression that contains these three is known as algebraic expression. For example, 2x plus 7. See, okay, let me just define what is constant. Constant क्या होता है? As the name suggests, whose value is fixed. जिसकी value fixed हो, that is a constant. For example, 23, 10 mangoes means 10 mangoes, right? तो उसकी value एक fixed है. Variables whose value vary, जिसकी value change होती है, that is a variable. For example, we can take variable as x. In one question, x is 2. In other, it is minus 3. X is 10. So x changes as the condition changes. तो जिसकी value भी change होती है, that is known as variable, right? So any expression that contains all these three things will be algebraic expression. So अगर ये algebraic expression है, तो polynomial क्या है? See, कोई भी algebraic expression अगर हम इसे क्लासिफाई करें, it may be a polynomial, it may be an equation, या फिर वो ना तो पॉलिनोमियल होगा ना इक्वेशन होगा, वो सिंपली हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे. अब क्या कंडीशंस रहती हैं, देखिए. अगर मैं बात करूं 2x plus 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस. क्या ये पॉलिनोमियल है? यस. क्या ये इक्वेशन है? नो. सी, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में सिर्फ ये डिफरेंस है. इफ दिस इज आर polynomial, this will be the equation, right? जहां पर equal to साइन आ जाए वो इक्वेशन बन जाएगा. अब देखिए, if it is 2 upon x, is this a polynomial? 2 by x, is this a polynomial? यहां पर polynomial में एक अलग कंडीशन है, that power of the variable, it must be a whole number. क्या condition है? We'll write it here, that power of polynomial, power of variable must be a whole number. whole numbers कहां से start होते हैं? 0 से. तो अगर मैं बात करूं 2 by x, दिस इज बेसिकली 2x पर माइनस 1. सो क्या ये माइनस 1 एक होल नंबर है? नो, दिस इज नॉट अ होल नंबर. सो ये पॉलिनोमियल नहीं है. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? राइट. अब इन जनरल इफ आई सी, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5. Is this a polynomial? Yes, this is a polynomial. Is this an equation? No. X square plus 5 equals to 0. This will be our equation, right?
अगर मैं बात करूं 2x² प्लस x अपॉन x, आप बोलेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में x है, दिस कैन बी रिटन एज 2x² प्लस x पावर -1. नो, बट दिस इज अ पॉलिनोमियल. हाउ? इसे मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ. आई कैन टेक x एज कॉमन इन द न्यूमरेटर and this will be 2x plus 1 upon x. So this will be again 2x plus 1. So this will be a polynomial. Is this clear to you all? Difference पता लगा? So next is, what is the coefficient? एक टर्म आप लोगों ने बहुत ही जनरली पढ़ी होगी क्लास 9th में भी, coefficient. What is a coefficient? Coefficient is a numerical quantity that is placed in front of a variable. Simple. A numerical quantity that is placed in front of variable. For example, this is a polynomial, right? यहाँ पर if I talk, यहाँ पर there are 3 terms. How many terms are there? 3. अच्छा, इस कंसेप्ट में भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. Here we have 3 terms. If I write it like this, x² plus 5x multiplied by 7, how many terms are there? Now 2 terms are there. जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिविजन किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में रहता है, वो एक ही टर्म होती है. Like 5x into 7, this is one term only. This is another term. So there are 2 terms in this. Right? So how many terms are there? 3 terms are there. So what is the coefficient of x square in this? Coefficient of x square. अब कौन सा न्यूमेरिकल है इस टर्म में? This is 1. So coefficient of x square will be 1, right? Coefficient of x in this. What is the coefficient of x? Plus 5, right? So can I ask what is the coefficient of x cube in this? X cube, coefficient of x cube. See, we do not have x cube term in this, right? So can I just write it as like this? X square plus 5x minus 7 plus 0 into x cube. This is one and same thing. So its coefficient will be 0. और in other terms आप लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि x cube वाली term तो है ही नहीं, तो उसका coefficient will be 0, right? So I hope coefficients आप लोगों को clear है. Now we'll be proceeding with another term, degree. So what is degree of a polynomial? What do you mean by degree? Degree is the highest power of variable in any expression. बहुत ध्यान से सुनेंगे इसे, बहुत फ्रीक्वेंट मिस्टेक होती है इसमें. Highest power of variable in any expression, right? For example, x cube plus x square minus 5x. So here we have 3 terms. यहाँ पर इस टर्म में पार क्या है अपनी 3, यहाँ पर क्या एक्सपोनेंट है 2, यहाँ पर क्या एक्सपोनेंट है 1. सो हाईएस्ट एक्सपोनेंट विल बी 3. सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3. डिग्री विल बी 3, राइट? इफ आई से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 100, सो व्हाट विल बी आवर डिग्री? अगेन आवर डिग्री विल बी 100. व्हाट इफ आई से एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, what will be my degree? Many of you will say degree will be 3. इस स्टेटमेंट पर बहुत से बच्चों का आंसर आता है that degree is 3. But make sure, what is the definition of degree? That it is the highest power of variable, right? So it is highest power of variable. तो degree is not 3. Degree is in 3. अब यहाँ पर we can write it as x square minus 8. राइट? सो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री विल बी 2 ओनली. इस चीज का ध्यान रखा जाए दैट डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, नॉट दैट ऑफ अ कांस्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो नाउ विल बी लर्निंग द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ये आप लोग दिस इज क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 9. सो क्लासिफिकेशन.
See, first will be based on degree. If the degree is 1, अगर डिग्री 1 है, if the degree is 1, then that polynomial is known as linear polynomial. क्या बोलते हैं हम उसे? Linear polynomial, right? If the degree is 2, that is a quadratic polynomial, right? अब लीनियर पॉलिनोमियल का इन केस आई नीड टू राइट एनी एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 7 लीनियर है, नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी हो, हाईएस्ट पावर मस्ट बी 1, राइट? अगर मैं इसमें सिंपली x लिख दूं और x पावर 100 लिख दूं, दैट इज सॉरी, डिग्री मस्ट बी 1, अगर मैं सिंपली इसे x लिख दूं तो दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल अगेन. क्यों? क्योंकि उसकी पावर क्या है? 1 है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square minus 2, this is a quadratic polynomial. X square minus 2 plus 3x, this is again a quadratic polynomial. If the degree is 3, that is a cubic polynomial, right? For example, x cube minus 2x square plus x minus 2, this is a cubic polynomial. If the degree is 4, then that is known as biquadratic polynomial. In this chapter we'll be taking quadratic polynomials, cubic polynomials as well as biquadratic polynomials, right? So biquadratic polynomial में maximum power, maximum exponent क्या रहेगा? That will be 4. तो biquadratic polynomial is a polynomial whose degree is 4. What if the degree is 0? चलो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसका नेमिंग बाद में करेंगे. व्हाट इफ आई से वी हैव अ कांस्टेंट 21 और सिंपली 1 डिजिट भी अगर ले लें, डजंट मैटर एट ऑल, 7. इस 7 की डिग्री क्या है? अब डेफिनेशन में डिग्री का डेफिनेशन था दैट इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. क्या यहाँ पर कोई वेरिएबल है? नो. दो तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को. वी डू नॉट हैव अ वेरिएबल हियर, राइट? तो इसकी डिग्री विल बी 0, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी डिग्री 0 होगी. अदरवाइज हम लोग इसे कैसे समझ सकते हैं? 7 कैन बी रिटन एज 7 into 1, राइट? अब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है दैट एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. एनीथिंग रेज टू पावर 0, x पावर 0 1, y पावर 0 1, 10 पावर 0 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. तो क्या मैं इस 1 को कैन आई जस्ट रिप्लेस इट एज x पावर 0? तो मैं 7 लिखूं या फिर 7 into x पावर 0 लिखूं? दिस इज वन एंड सेम थिंग. ध्यान दीजिए इस पर. दिस इज वन एंड सेम थिंग. मैं 7 लिख रही हूं या मैं 7 into x पावर 0 लिख रही हूं. तो बेसिकली व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस 7 और 7x पावर 0? डिग्री विल बी 0, राइट? तो हम इसे क्या बोलते हैं? अगर डिग्री 0 है, दिस विल बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. आई होप ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को क्लियर होगा. एग्जाम्पल में वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल. दिस इज आवर एग्जाम्पल. सो बेस्ड ऑन डिग्री अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इफ द डिग्री इज 1, that will be linear polynomial. Degree is 2, quadratic polynomial. Degree 3 है तो cubic polynomial. Degree 4, biquadratic, and degree 0, constant polynomial. Okay. सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी चैप्टर करते हैं, it is very important कि हमें उस चैप्टर का जो भी उस चैप्टर का नाम है, हमें उसके बारे में डेप्थ में पता होना चाहिए. In class 10th, you will be reading polynomials. You will be reading linear equations, quadratic equations. आपका चैप्टर 3 है linear equations. चैप्टर 3 is linear equation in 2 variables. अब आप समझें, सबसे पहला वर्ड है लीनियर. लीनियर है मतलब उसकी डिग्री तो 1 ही होगी, राइट? इक्वेशन है
तो उसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और इक्वल टू साइन भी होगा. Do you understand? And there will be how many variables? 2 variables. For example, 2x minus 3y equals to 7. इसमें भी x पावर 1 है, इसमें भी वेरिएबल का पावर 1 है और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 2 variables are there. So this is basically linear equation in 2 variables. और इक्वल्स टू साइन भी है, इक्वल्स टू 0 हो प्लस 7 को आप इधर लाकर माइनस 7 लिख दें, दैट इज वन एंड सेम थिंग, राइट. अब आप लोग उसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सी 4th चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अगेन उस चीज को समझ आना चाहिए आपको, व्हाट शुड बी द चैप्टर ऑल अबाउट. चैप्टर है किस बारे में? इक्वेशन है तो कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होंगे. सेकेंड थिंग, इक्वल्स टू साइन जरूर होगा क्योंकि वो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, मतलब उसकी डिग्री क्या होगी वहां पर 2. तो कोई भी एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप ये चीजें क्लियर हैं. तो ये बेसिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री हमने किया. नाउ द क्लासिफिकेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. ये भी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, राइट. If any expression has just one term or any polynomial has just one term, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल. मोनो means one. For example, 2x, there is a one term. If we have two terms here, that is binomial. क्या बोलते हैं उसे? Binomial. Bi means two. अगर 3 टर्म्स हैं अपने पास यहाँ पर, दैट विल बी ट्राइनोमियल. ओके. इन जनरल पॉली मीन्स मेनी. इन जनरल हम इसे क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल. पॉली मीन्स मेनी. आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर है. पॉलिनोमियल मीन्स एनी एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम बहुत सारी टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब हम एक नया टर्म सीखने वाले हैं. हालांकि क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है. जीरो और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरो और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके. व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? चलो उससे पहले फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए, सॉल्व 2x प्लस 5, आप लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? सी, ये क्वेश्चन तो बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं. अगर आपके पास आ जाए सॉल्व 2x प्लस 5, हम लोग सिंपली इसे किस तरीके से करते हैं? 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 2x equals to minus 5 and this implies x क्या हो जाएगा? minus 5/2. यही इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है, x की वैल्यू आ जाती है. अगर मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 2x plus 5 equals to 0, अगेन इसका सॉल्यूशन भी यही होगा, राइट. अगर आपसे मैं ये बोलती हूं फाइंड द जीरो, और यहां पर इस तरीके से आप पढ़ेंगे, इट मे बी 1 0, इट मे बी मोर देन 1, तो जीरोस प्लूरल के लिए लिखा हुआ है. फाइंड द जीरोस ऑफ 2x प्लस 5, राइट. अब ध्यान से समझिए, ये जो तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन लिखे जरूर अलग अलग तरीके से हुए, बट इनका मीनिंग सिर्फ एक ही है. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यू नीड टू फाइंड दैट वैल्यू जो इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर इसे सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई मीन्स कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए.
इज दिस क्लियर टू यू? तो जीरोस मीन्स ऐसी वैल्यू जो उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आई होप ये टर्म आपको क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो? ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। ओके, सी नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ सी ग्राफ। ओके, ग्राफ से पहले जनरल फॉर्म में लेना चाहूंगी। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात चलो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म है एक पॉलिनोमियल का वेयर a कैन नेवर बी जीरो। यहां पर a जीरो नहीं हो सकता। वाई? अगर यहां पर a जीरो हो जाता है, अगर ये a जीरो हो जाता है तो दिस विल बी जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म तो वेनिश हो जाएगी। क्या बचेगा? bx प्लस c। दिस विल बी द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन। तो जब भी आपको जनरल फॉर्म लिखना, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, जब भी आप लोगों को जनरल फॉर्म लिखना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यू हैव टू मेंशन दैट a कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। वाई? क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा आपके पास? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, राइट? नाउ विल बी स्टडिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सी, एक एग्जाम्पल से मैं शुरू करूंगी। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, राइट? ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। हम लोग अगर इसे हमें एक ग्राफ पे प्लॉट करना होता था। सी, वी हैव अ कार्टेशियन प्लेन, this is x, this is negative x, y, negative y, right? अगर मुझे इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, इफ x इज जीरो, अगर x जीरो है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, राइट? इफ y इज जीरो, अगर y जीरो है तो x की वैल्यू विल बी 2। लेट अस प्लॉट इट। दिस इज ऑरिजिन, दिस इज कार्टेशियन प्लेन। अब बेसिकली आप लोगों को 3 पॉइंट्स मिनिमम लेने हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उससे मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, राइट? तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 4, सेकेंड विल बी 2 0। तो सी, ये इस तरीके से आएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो एक चीज इन जनरल याद रहे, जो आप लोगों ने अभी क्लास 9th में पढ़ा है, आप लोगों ने लीनियर ग्राफ्स प्लॉट करने सीखे थे, राइट? तो लीनियर ग्राफ्स हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। लीनियर ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होगा वो हमेशा। आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइट? अभी हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सी, you have a quadratic polynomial there is a polynomial in x square minus, और सिंपली अभी के लिए x स्क्वायर लेते हैं, राइट? तो आई कैन राइट इट एज दिस फंक्शन ऑफ x, इसे मैं y लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल्स तो एटलीस्ट चाहिए उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। सी, यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
अगेन हम लोग एक टेबल बनाएंगे. इफ x is 1, y will be 1. इफ x is 2, अगर x 2 होगा तो y will be 4. अगर x -2 होगा या -1 होगा तो y will be 1 again. अगर x यहाँ पर आपके पास -2 होगा तो y will be 4 again. ओके, प्लॉट करते हैं इसे. राइट, 1 1 ये आ गया, 2 4, -1 1, -2 4. दिस विल बी here. अब इसका ग्राफ जब मैं ड्रॉ करूंगी इट विल बी लाइक दिस. तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला. क्या बोलते हैं? पैराबोला. क्या बोलते हैं? पैराबोला. ठीक, तो कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो हमेशा किस शेप में होगा? पैराबोलिक शेप में होगा. राइट, अब इसी के बेसिस पर आई होप आप क्यूबिक का किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब, बहुत ही बेसिक लेंगे तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक कर्व बनता है. इट इज somewhat like this. It can be like this. तो इसका एक कर्व बनता है. अब इसके बेसिस पर आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. सी, द नंबर ऑफ टाइम्स ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही उस एक्सप्रेशन के, उस पॉलिनोमियल्स के जीरोस होंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. दिस ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है तो इट हैज नो जीरोस. एक भी जीरो नहीं होगा इसका. अगर मैं बात करूं इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है? एक पॉइंट पर. तो इसमें कितना जीरो होगा? 1 0. आप कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके देखें. 2x + 5 = 0. अभी हमने सॉल्व किया था, x क्या था? -5/2. राइट, x की कितनी वैल्यू थी? ओनली 1 वैल्यू. राइट, अभी अगर मैं बात करूं पैराबोला की, पैराबोला किसी भी फॉर्म में हो सकता है. If a parabola is like this or a parabola is like this, it won't have any zero, no zero again. अगर वही पैराबोला इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, हाउ मेनी जीरोस विल इट हैव? एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, 2 जीरोस विल बी देयर. अगर इस तरीके से वी हैव अ पैराबोला जो कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो 1 0 विल बी देयर. अगर एक we have a curve, इसमें इस कर्व के कितने जीरोस होंगे? एक्स एक्सिस को इट इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स. so how many zeros will be there? 3 zeros will be there. I hope these graphs are clear to you. I hope this class is clear to you. We'll be studying further in our next class. Thank you.